will be a catalyst for all the students who want to do work in this domain, who want to become professionals and make a social impact through do good journalism or do good advertising. That's what I have to say. I want to end by recommending a book. I read this book 4 or 5 months back. I've been wanting to send it to Rivanji. Whenever I come across a good book, I send it to him because he loves it. It's a book called Fluke. That's very Fluke. And Fluke का मतलब होता है तुक्का उर्दू में, और अंग्रेजी में आप कह सकते हो चांस, लक, serendipity, if you like that word. And the book I read is written by a social anthropologist called Matthew Claus. Sorry, it's written by his brother Brian Claus. And it basically says everything in life is serendipity. I'm a Hindu, I was a Prarabdha, preordained. So हम सोचते हैं हमने क्या? It's all preordained. At least that's what I believe in. And I go to a temple every day. Right? And it says that we give too much credit to ourselves for our own success and too much blame to others for what doesn't happen. I don't believe anything in the failure. Randy Foss said experience is what you get when you don't get what you want. This book is lovely. I will give you one story from the book. Just to give you lovely stories in the book. Books are about storytelling. At Harivanji's age, I don't think he learned anything, he lives there. But it's about beautiful storytelling. And just to illustrate the point, if Donald Trump hadn't ducked, the world would be a very different place. It's serendipity too. Now there is a story where there is a girl and boy, they work for the same American company in America and they are meeting in New York. And they are having a relationship. So the girl gets a tie for the boy. And the boy wears it on a certain shirt, he's wearing that day. And she says it doesn't look good on the shirt. So he says, okay, I'll go to my room, I'll change the shirt, wear the tie, it will look good on that. He goes to his hotel room, he's ironing the shirt. She goes to her office is in Twin Towers. The plane hits the Twin Towers, she dies, and he's saved. Now, just the act of what will you do? I don't know. I mean, Pulwama was sad. The Air India crash was sad, right? What happened a couple of days in Kashmir was sad. Some people got saved. There are stories about people who ordered food. The food had too much salt. They reordered. It took 1 hour more. They missed going to the middle. That girl in Ahmedabad who tried everything to get on the flight couldn't get on. She got saved. So what is it? I mean, I sometimes want to go to a certain thing I'm not able to in spite of my best intent. Right? So life is about giving. Whatever you get in life is also because of the prarabdha of your whatever you get is not just because of you. It's about what your grandparents did, what your parents are doing. मैं हमेशा believe करता हूँ कि मेरी लाइफ में मुझे जो भी मिला मेरे माँ बाप के सुकर्म के कारण मिला है. And मैं deeply believe करता हूँ. मैं मेहनत करता हूँ सब ठीक है. मेहनत तो मजदूर भी करता है. Right? So I just want to say that in life, make efforts. Life is what you focus on. Be egoless, be humble, and whatever you do, do it in a way it's good for the society. Thank you. God bless you. Thank you so much, sir. A huge round of applause for Dr. Batra. I think my personal favorite from what he said is we give too much credit to ourselves for our success and blame others for the failures. I think that sentiment has echoed with all of us present here. Thank you so much, sir, once again. At the onset, I shall start by quoting that this 282-page coffee table volume takes us through 35 advocacy campaigns and more than 400 creatively designed ads that redefine how journalism could be fused with public service. From exposing the infamous fodder scam to advocating for child rights, gender dignity, education, and governance, this book showcases how media can be a catalyst for lasting transformation. It also features rare anecdotes like the moving letter from a jailed Maoist leader whose only request was a copy of Prabhat Khabar, symbolizing the deep bond between the newspaper and its readers. Ladies and gentlemen,
the moment we have all been waiting for. I request Sri Harivansh Narayan Singh Ji, Honorable Deputy Chairman Rajya Sabha, along with our dignitaries, to unveil the book Harivansh's Experiment with Advocacy Journalism from Acts to Action, Words to Change, authored by Sri A.S. Raghunath Ji. I shall request the author of the book to kindly join in for the unveiling of the book. A huge round of applause to mark this historic moment. Please continue. This is a huge, historic moment for all of us present here, for the university, for everybody who is associated with the university. Jai Shri Ram. A huge round of applause, please. I shall now take the opportunity to introduce Sri Harivansh Narayan Singh Ji, Honorable Deputy Chairman of the Rajya Sabha, who is a distinguished Indian journalist and politician. A graduate in economics from Banaras Hindu University, he began his career with the Times of India and went on to serve as additional media advisor to former Prime Minister of India, Chandrasekhar. In 1989, he took charge of the then obscure and nearly defunct Hindi daily Prabhat Khabar. With his unwavering commitment to truth, fearless reporting, and uncompromising adherence to journalistic ethics, Harivansh Narayan Singh Ji transformed it into one of India's most respected and widely read newspapers. Under his leadership, Prabhat Khabar became a voice of integrity in Indian journalism, courageously exposing major stories, including the landmark investigation into the infamous Horner scam. His work turned the newspaper into not just a publication but a people's movement, a revolution in journalism that reaffirmed the power of ethical media in shaping society. In 2014, Harivanshi was nominated to the Rajya Sabha by the Janata Dal United from Bihar, and in 2018 he was elected as the Deputy Chairman of the Rajya Sabha. We extend a warm welcome to you, sir. You are a true inspiration to all of us gathered here. It is our honor to welcome Sri Harivansh Narayan Singh Ji, Honorable Deputy Chairman of the Rajya Sabha, to deliver the keynote address. Sir. आप सबको मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं मानव रचना विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर आपकी प्रोफेसर संजय श्रीवास्तव जी का और डॉक्टर प्रोफेसर शिल्पी झा जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा इस कार्यक्रम को होस्ट करने के लिए, और मुझे आपके बीच यहाँ पुनः एक बार और उपस्थित होने का मौका देने के लिए। अभी आपने सुना बिजनेस वर्ल्ड के चेयरमैन, उसके मुख्य संपादक और हमारे बड़े पुराने, मैं बल्कि कहूँ तो शायद उनको इस 25-30 वर्ष पुराना रिश्ता उनसे, क्योंकि 12 वर्ष से तो मैं दिल्ली 15 वर्षों से आ गया, उससे 10 वर्षों पहले से उनसे बहुत आत्मीय संबंध है। डॉक्टर अनुराग गुप्ता जी, अब उन्हें लोग इंटरव्यूअर के रूप में सक्सेसफुल मीडिया
नहीं है, पर मैं उन्हें बहुत बेहतर पत्रकार के रूप में हमेशा देखता हूं, जानता हूं। बहुत सुंदर लिखते हैं, बहुत तथ्यों के साथ लिखते हैं। उससे भी बड़ी चीज कि बड़े वार्म के व्यक्ति हैं। जब भी आपसे मिलेंगे तो आपको एहसास होगा कि किसी ऐसे आप व्यक्ति से मिल रहे हैं जिससे न मिलते तो आप शायद अतिरिक्त रूप से अपने जीवन को समृद्ध न होते विचारों में संबद्ध होते। मैं रघुनाथ जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिनकी वजह से हम सब आज यहाँ एकत्र हैं। और रघुनाथ जी क्यों इंस्पायरिंग फिगर हमारे लिए भी, वो अपने जीवन में सबसे गहरे और गंभीर चुनौती से गुजरे, इसके बाद भी जिस तरह वो काम करते हैं, जिस लगन से करते हैं, वो सीखने योग्य है किसी भी व्यक्ति के लिए। जो मुंबई के टाटा जो कैंसर हॉस्पिटल है वहां भी हुए, तो उनको नेक्स्ट डे कोई काम करके देना है तो ही फाइट्स बाय दैट टाइम डेडलाइन। तो उनकी प्रतिभा और जिस तरह से पैशन से उन्होंने किताब लिखी, वो मुख्य वजह है, उस कारण हम लोग आज यहाँ मौजूद हैं। और इसके साथ वो सारे मित्रगण आज यहाँ मौजूद है जिन्होंने, जब हम सब अखबार में काम कर रहे थे, कैसे अखबार में जिसका कोई भविष्य था ही नहीं, उसका भविष्य दिन में, सप्ताह नहीं दिन में लोग गिनते थे कि 2 दिन 4 दिन 5 दिन कितने दिनों तक चल पाएगा। तब जिन्होंने साथ दिया, जिन लोगों ने साथ लगकर काम किया, और हमेशा कोई चीज अगर सफल होती है, कामयाब होती, तो टीम की वजह से होती है, व्यक्ति की वजह से नहीं। उस टीम में हमारे विशाखा कम्युनिकेशन के सर्वे सर्वा श्री अभिमन्यु मिश्रा जी बैठे हुए हैं। अभिमन्यु जी आज भी उनकी बहुत पुरानी जीवन, जो हम सब साथ बैठते थे, बात करते थे, वो छवि मेरे दिमागों में है। उनके साथ विज्ञापन इंडस्ट्री की ख्याति प्राप्त उनकी पत्नी श्रीमती विशाखा साहा जी, उनके सुपुत्र जो आजकल खुद काम से जुटे हैं अग्नि मिश्रा जी, तत्वा कम्युनिकेशन की श्री कृष्णेंदु दत्ता जी, कृष्णेंदु जी हमारे बीच यहाँ मौजूद है। उनके द्वारा बनाए गए, उनके लिए बड़े सुंदर ढंग से बनाए गए विजुअल विज्ञापन जो इस किताब में लगभग हर पन्ने पर आपको मिलेंगे, कुछ एक छोड़कर के जो शुरुआती दिनों के थे। श्री अमिताभ नवल जी, जिनके लिखे कई अभियान इस किताब का हिस्सा है, और एक नेशनल कैंपेन जो चला था, कई मीडिया हाउसेज जुड़े थे जिसमें हम सब भी थे। भूस को भूसा, वो उसी का डिजाइन किया हुआ टैगलाइन है, जो आरटीआई अभियान देश के कई और अखबारों में छपा और टीवी चैनलों पर जो दिखाया गया। श्री करण प्रताप सिंह राघव जो एक बड़े प्रतिष्ठित एड एजेंसी के क्रिएटिव डायरेक्टर हैं, श्री नवीन चौधरी जी मौजूद हैं जो खुद ब्रांडिंग प्रोफेसर रहे हैं और उससे बेहतर बहुत पूर्णकालीन लेखक हैं। उनकी लेखकीय प्रतिभा से मैं वाकिफ हूं, वो मौजूद है। सुश्री अनामिका नाथ जी जो ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया से जुड़ी है, कंटेंट एनालिसिस फर्म से जुड़ी है, देश भर में न्यूज टीवी का साप्ताहिक कंटेंट एनालिसिस वो करती हैं। एस्ट्रेल सर्विसेज की डायरेक्टर शोभा श्रीवास्तव जी, संचालन कर रही अभिनंदिता देव जी, मानव रचना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, प्रो वाइस चांसलर, शिक्षकगण, पत्रकारिता से जुड़े मेरे प्यारे दोस्तों, देश के भविष्य विद्यार्थी, आप सबको पुनः मेरा नमस्कार। मैं सिर्फ 3-4 चीज बहुत ब्रीफली कहना चाहूंगा। जिन लोगों का मैंने नाम लिया रघुनाथ जी के साथ, और जो लोग उनको डिजाइन करने में थे, ये काम अगर कुछ हो सका तो उनका बड़ा योगदान है, जिसकी वजह से हम सब जहां काम करते थे उसमें बहुत मदद दी। यह पूरी पुस्तक उस एक अखबार और उस एक प्रतिष्ठान या उस एक कंपनी का विवरण है, जिसमें जब काम की शुरुआत हुई तो उसके पास कोई संसाधन नहीं थे कि उसका कोई भविष्य दिखाई दे, तब कैसे काम संभव हुआ, ये उसका विवरण है। ये मैं आपको अगर बताऊं कि पहला दिन जब हम
लोगों ने उस अखबार में काम शुरू किया तो मुझे हमेशा याद आता था कि बंबई के टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के हरव्यू में काम करते, जो अपने समय की सबसे बड़ी पत्रिका थी, जहां से हमने काम शुरू किया था। फिर आनंद बाजार ग्रुप की सबसे प्रभावी पत्रिका रविवार, वहां से मैं एक बंदप्राय अखबार में आया था। जब हम टीम ने वहां काम करना शुरू किया तो उस अखबार का कोई भविष्य नहीं दिखता था, तो कैसे हम लोगों तक पहुंच सके कि हमारा अखबार अन्य अखबारों से भिन्न है। उसकी शुरुआत किस तरीके से हम लोगों ने की, उसकी कहानी। तब हमारे पास कोई संसाधन नहीं था, टीम जो बैठी वो टीम में नहीं थी। तो अखबार छपने से जो कागज पर जाया करता था, बहुत छोटा कागज जो बाद में वेस्ट में बिकता था, उस कागज पर पैम्पलेट छाप करके कैसे लोगों के बीच हम लोगों ने कम्युनिकेट करना शुरू किया कि हाउ दिस न्यूज़पेपर इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। उस एक मामूली शुरुआत से कैसे हम सब ने जगह बनाई और वहां देश के बड़े प्रतिष्ठित और एस्टेब्लिश न्यूज़पेपर से जिनके बीच हमें काम करना था। सबसे जो स्पर्धा का दौर था उसमें दूसरे अखबारों के लोग बाध्य करते थे कि अखबार को आप लोग उठाए, तो वापस अखबार नहीं उठाते थे। हम लोगों ने कैसे पाठकों के बीच अपने बदले हुए स्वरूप अखबार का जो कंटेंट था उसकी सूचना दे करके पाठकों से डिमांड क्रिएट कराया, उसकी कहानी है। इसमें कई अनेक प्रसंग हैं, पर मैं उस पर बताने के बजाय दूसरी बात कर, क्योंकि नवीन जी से बात होनी है, उसमें बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। मैं कहना चाहूंगा आपसे कि आप नौजवान बच्चे जो आज की तारीख में आप अपना करियर शुरू करना चाहें, तो क्या मौका है आपके पास, क्या अवसर है इस टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में। मैं आपको उल्लेख करूं कि जब मैं नौकरी की शुरुआत कर रहा था 1978-80 में बंबई टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप में, तो बहुत एक मशहूर किताब हमने पढ़ी, एल्विन टॉफलर की फ्यूचर सॉफ्ट। और जरूर आप लोग एल्विन टॉफलर, हेडी टॉफलर ने मिल करके 3-4 किताबें लिखी। हेडी टॉफलर की पत्नी थी। एल्विन टॉफलर की बुक फ्यूचर सॉफ्ट में एक कोट है, उस कोट को आप याद रखिए आज की तारीख में, अगर आपको अपना कैरियर देखना है। उनके कोट का आशय है कि 20वीं शताब्दी के लिटरेट वो नहीं होंगे जो पढ़ना लिखना नहीं जानते, वो तो सब जानते हैं, आप अच्छी तरह पढ़ना लिखना जानते हैं। वो होंगे जो बदलते समय के साथ अपनी टेक्नोलॉजी और स्किल नहीं बदल सकते, वो रिडंडेंट हो जाएंगे। तो अगर आप आज जो दुनिया की इस तरह से टेक्नोलॉजी बदल रही है, अगर उसके अनुरूप अगर आप उससे कोई कुछ नहीं कर सकते तो आप रिडंडेंट हो जाएंगे। ये हम सबके जीवन के अनुभव का निचोड़ है। मुझे उम्मीद है कि आप इसे जरूर सीखेंगे। तीसरी और अंतिम बात, मैं अभी 3 दिनों पहले मेरी पत्नी ने रिवॉर्ड से एक पुस्तक के बारे में भेजी, एक आईपॉड इंटरेस्टिंग टाइप्स जो सुनिए आपकी पीढ़ी और आपसे जुड़ी हुई चीजें हैं, वो न्यूयॉर्क टाइम्स आज के चलाता है। एक पुस्तक आई है जो अभी भारत में आई नहीं है, शायद महीने 2 महीने में आ जाए, इंटरनेशनल मार्केट में है। ब्रेकनेक चाइना क्वेस्ट टू इंजीनियर द फ्यूचर। टेक्नोलॉजी कैसे दुनिया को बदल रही है और चीन ने कैसे अपने को बदला है। मुझे उसे जानकर आश्चर्य हुआ कि पॉलिसी मेकिंग में कैसे चीन ने शुरू से शुरुआत की। उनके यहाँ 2002 तक जो 15 पॉलिट ब्यूरो मेंबर थी, पॉलिट ब्यूरो ही वहां सब कुछ तय करता है, उसमें से 9 के 9 सदस्य सिविल इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड थे। वो कहते हैं यूएस के बारे में बातचीत है, आज यूएस दुनिया को कंट्रोल करेगा चाइना। ये किताब उसी पर संबंधित है। उसमें कहते हैं यूएस के बारे में जो क्वेश्चंस कर रहे हैं वो, I contrast that with the lawyers society of the United States, the lawyerly society, यानी वो कागज करने वाली, तर्क करने वाली सोसाइटी या समाज of the United States is really good at stopping a lot of things. तो हर चीज को रोक देना, बंद करा देना, हर ठहराव पैदा करना, वो बहुत अच्छी जानती है।
US does not have functional infrastructure almost anywhere I would say. किस तरह के वो आविष्कार अपने यहाँ कर रहे हैं? यूएस की सोसाइटी में अगर सिलिकॉन वैली जहां से दुनिया को बढ़ा जा रहा है, टेक्नोलॉजी जो दुनिया को रूल कर रही है, तो क्रिप्टो करेंसी और कंज्यूमर टेक एंड हेज फंड्स इनटू बिल्डिंग इंडस्ट्री, यानी वो सारे ऐप्स जो आपको जीवन की सुविधा दे सके, जो आपके घर तक बहुत आसानी से सामान पहुंचा सके, लेकिन वो ऐप जो दुनिया को बदलने वाले हैं, जो फ्यूचर बदलने वाले हैं, जो दुनिया में आपकी ताकत को बढ़ाने वाले हैं, सेमीकंडक्टर, एविएशन और केमिकल इंडस्ट्री, उन पर फोकस नहीं हो रहा है, उन पर चाइना फोकस कर रहा है। मैं इसको इस रूप में कह रहा हूँ कि भारत ने 14 के बाद स्थिति सब को बदलना शुरू किया, चाइना ने 77 से बदलना शुरू किया। अगर आज की तारीख को मुझे पत्रकारिता करने का मौका मिला, जिसका उल्लेख कर रहे थे हमारे आपने सुना यहाँ हमारे मित्र अनुराग बत्रा जी की पत्रकारिता आकर्षण भी है, वो सही है कि जीवन में अगर आप कोई माध्यम चाहते हैं नौकरी के लिए, तो जरूरी नौकरी करें, डिसेंट नौकरी करें, पर नौकरी के साथ पैशन हो। वो पैशन आज भी संभव है कि अगर अपने देश में आप बताएं कि कैसे टेक्नोलॉजी दुनिया को बदल रही है। आज 10 वर्षों में जो चीजें बदली है भारत में, बहुत चीजों के बारे में लोग अच्छी तरह नहीं जानते। अगर हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से चुनौती स्वीकार करके चीजों को कर सकने की क्षमता रखते हैं, तो हमारे लिए फ्यूचर ही फ्यूचर है, अवसर ही अवसर है। अगर हम नहीं कर सकते तो हमारे लिए कोई अवसर आज की तारीख में नहीं होगा। और पत्रकारिता में भी ये एक बड़ा अवसर है। जिस तरह से इस किताब में हम लोगों ने आप पाएंगे कि अनेक ऐसे सब्जेक्ट्स, जो सब्जेक्ट पत्रकारिता के मुख्य सब्जेक्ट नहीं होते थे, पर उनको ढूंढ कर निकाल करके हम लोगों ने उस समाज का सबसे इंपॉर्टेंट इशू बनाया। उसी तरह से आज की तारीख में भी इस बदलते माहौल में कैसे आप बहुत एक इफेक्टिव इंटरवेंशन कर सकते हैं पत्रकारिता के माध्यम से, वो अवसर है। हमें उस पर आज इस किताब के माध्यम से बात करना, चर्चा करनी चाहिए। मुझे लगता है कि बातचीत होगी, बहुत सारे सवाल आएंगे। मैं ही कहना चाहता हूँ कि पुस्तक इस रूप में आप देखें तो आपके जीवन के लिए उस तरह की चुनौतियां मिले तो आप क्या कर सकते हैं।